ملک بھر میں طوفانی بارشیں، سیلاب نے ہر طرف تباہی مچا دی، ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں جھنگ اور چنیوٹ کے علاقوں میں دریائے چناب نے شدید نقصان پہنچایا۔ جھنگ میں 600 ایکڑ سے زائد اراضی پر کاشت سبزیاں سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ مکئی، دھان اور سبزیوں کے کاشتکاروں نے سر پکڑ لیے۔ چنیوٹ میں بھی متعدد علاقے سیلاب سے متاثر۔ جنگ میں سیلاب کے باعث پولیو مہم کا ٹارگٹ پورا کرنا محکمہ صحت کے لیے مشکل ہو گیا۔ سیلاب سے متاثرہ 13 یونین کونسلوں کے 528 گھروں میں پولیو ٹیمیں نہ پہنچ سکیں۔ محکمہ صحت نے سیلابی علاقوں میں ٹیمیں بھیجنے کے لیے ضلع انتظامیہ سے مدد مانگ لی۔ ڈپٹی کمشنر نے سیلابی علاقوں میں پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر منظور حسین کا کہنا تھا کہ ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جلد ٹارگٹ مکمل کر لیا جائے گا۔ ٹرین کا سفر سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں ریلوے ٹریک ڈوب گیا۔ محکمہ ریلوے نے ٹرین آپریشن کو 5 روز کے لیے ملتان تک محدود کر دیا۔ فیصل آباد سمیت دیگر شہروں سے سفر کرنے والے مسافر صرف ملتان تک جا سکیں گے۔ فیصل آباد سے کراچی جانے والی 6 ٹرینیں 5 روز کے لیے بند کر دی گئیں۔ رحمان بابا، قراقرم، ملت شاہ حسین اور سر سید ایکسپریس شامل ہیں۔ تفتان سے مستونگ کا رابطہ سیلاب کے باعث کٹ گیا۔ ایران اور عراق سے واپس آنے والے زائرین تفتان بارڈر پر پھنس گئے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت، مریض افراد کے پاس ادویات بھی ختم ہو گئیں۔ زائرین کی حکومت سے مدد کی اپیل۔ کہنا ہے 4 روز سے تفتان بارڈر پر پھنسے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے۔ اس کے علاوہ زائرین میں موجود مریض افراد کے پاس ادویات بھی ختم ہو گئی ہیں اور تقریباً 1000 سے زائد افراد تفتان بارڈر پر موجود ہیں اور ان زائرین میں ضلع چنوٹ کی تحصیل بوانا کے مکین بھی شامل ہیں۔ زائرین کا مزید کہنا ہے کہ انتظامیہ بروقت سیکورٹی فراہم کرتی تو یہاں سے نکل سکتے تھے، کیونکہ بعد ازاں تفتان سے مستونگ جانے والا راستہ سیلاب کے باعث زمینی رابطہ منقطع ہے۔ اس لیے حکومت سے اپیل ہے کہ یہاں سے نکلوانے کے لیے مدد کی جائے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آیا۔ آپ بھی لائیں آٹا، چینی، چاول، گھی، دالیں اور خشک میوہ جات۔ ہم پہنچائیں گے آرمی کی مدد سے متاثرین تک ذمہ داری کے ساتھ۔ تاجر، بزنس مین، ڈاکٹر، وکیل سب ہماری کاوش کا حصہ بنے۔ گرم کپڑے، کمبل، خیمے، جوتے جو کچھ ہو سکے جمع کرائیں۔ سے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ان کی امداد کے لیے سٹی 41 نے امدادی کیمپ کا انعقاد اپنے دفتر کے باہر کر دیا۔ شروعات میں ہی تاجروں اور کاروباری حضرات نے کیمپ کا دورہ کیا۔ سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری رانا سکندر اعظم نے سٹی 41 کی کاوش کو سراہا۔ بلوچستان تباہ ہو چکا ہے، آپ سندھ میں دیکھیں پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے، اور کے پی کے میں آج بہت زیادہ گلگت بلتستان اور آپ کا آزاد کشمیر اور یہ ایریاز بہت آج، بلکہ مانسہرہ سٹی کے اندر شہر میں پانی داخل ہوا ہے۔ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس پہ پوری قوم کو لبیک کہنا چاہیے۔ رانا سکندر نے کہا سیلاب میں لوگوں کی چھتیں چلی گئیں، ننھے بچے بے گھر اور بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانب سے بھی 41 کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی نیکی کی ہے آپ نے، اور میں اپیل کرتا ہوں تمام پاکستانیوں سے کہ آؤ مل کر اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے کام آئیں اور دل کھول کے اپنی ہر طرح سے مالی ان کی امداد کریں۔ رانا سکندر اعظم نے کہا وقت آ چکا ہے کہ پورا ملک مشکل کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کو سہارا دے تاکہ انہیں اس مشکل وقت سے نکالا جا سکے۔ کیمرہ مین وحید محمود کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں بجلی کے ترمیم شدہ بلوں پر ریلیف، 200 یونٹ تک فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ختم کر دی گئی۔ 201 یا زائد یونٹ پر پورا بل ادا کرنا ہوگا۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد نے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے پریس کانفرنس کی۔ چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد کا کہنا تھا کہ جون میں 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے بلوں سے ایف پی اے نکالا جا رہا ہے۔ کسٹمر ریش ہو رہا ہے کہ لاؤ یار میں ٹھیک کر دیتا ہوں، لگ تو جانے۔ اب دیکھیں اگر گورنمنٹ کی پالیسی نہ ہو، آپ کا ایف پی اے 2000 ہے، میں اس کو فوری طور پر ٹھیک کر کے بل کو آپ کو دے دوں، تو 2000 اگلے مہینے تو لگنا ہے نا جب تک گورنمنٹ نہیں نکالے گی۔ تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ بل ٹھیک کیے ہیں، اس نے کوئی 200-250 بل ٹھیک کیے ہیں اس نے۔ سی ای او فیسکو چودھری بشیر احمد کا مزید کہنا تھا 28 لاکھ صارفین کے بلوں سے ایف پی اے نکالا جا رہا ہے۔ بجلی کے بلوں سے ایف پی اے آن لائن نکلے گا، صارفین کو دفاتر آنے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں نا گورنمنٹ نے پراپر اناؤنسمنٹ کر دی ہے، اب وہ جڑلے سے نکال بھی سکتے ہیں، بالکل اپنے ہاتھ سے بھی نکال سکتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ہم نے بل پرنٹنگ جو ہے نا وہ
फेस्को की जानिब से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 28 लाख सार्फिन के बिलों से FPA निकालने की मंसूबाबंदी तैयार कर ली गई है। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। FBR ने छोटे दुकानदारों पर सेल्स टैक्स के लिए असर नो फार्मूला तय कर दिया। बिजली के बिलों पर इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के लिहाज से सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। 1 जुलाई से 20,000 रुपये तक बिल पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि 20,000 रुपये से जायद बिल पर 7.5% सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। बिजली के बिलों पर इस्तेमाल शुदा यूनिट्स के लिहाज से सेल्स टैक्स वसूल किया जाएगा। फैसले का इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। गुज़िश्ता महीने वसूल करदा फिक्स टैक्स की एडजस्टमेंट आइंदा महीने के बिलों में होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया की मुबैना गफलत या बड़ी नहली। मुज़र सेहत सिरप अस्पतालों में पहुंचा दिए गए। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से बगैर पास कराए ब्रूफिन सिरप अस्पतालों और मराकज़ सेहत में पहुंचाया गया। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से ब्रूफन सिरप ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से पास करवाए बगैर तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों और रूरल हेल्थ सेंटर्स पर मुंतकिल कर दिए गए। अस्पतालों और मराकज़ सेहत को तकरीबन 85,000 सिरप मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 60,000 सिरप का बैच फेल करार दिया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर शुएबुर रहमान कहते हैं कि मुतलका कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, ताहम ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से पास किए गए बगैर सिरप मरीजों को नहीं दिया जाता। मेडिसिन हमारे पास 60,000 के करीब ये हमारे पास सिरप थे, तो वो हम जो है वो कंपनी को वापस कर रहे हैं और उनकी रिप्लेसमेंट भी मांगी है, और जो फेल हुआ है तो उसके मुताबिक कानूनी तौर पर जो कार्रवाई बनती है वो भी अमल में लाई जा रही है। जगह की तंगी के बायस सिरप अस्पतालों और मराकज़ सेहत को फौरी मुंतकिल कर दिया जाता है, मगर अब अस्पतालों और मराकज़ सेहत से सिरप वापस उठवा रहे हैं। इसके अलावा नए सिरप की खेप मंगवा रहे हैं। पेन किलर भी है, बुखार के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, तो आम रूटीन में इस्तेमाल होता है, लेकिन यह है कि जब तक DTL पास नहीं होती वो लोग हम पेशेंट्स को नहीं देते, वो हमारे पास पड़ा रहता है। DTL पास होती है और DTL पास ना हो तो फिर उनकी CDR भी हम जब्त कर लेते हैं और उसके मुताबिक जो FIR जो बनती है वो भी करते हैं। डॉक्टर शुएबुर रहमान का मजीद कहना था कि ब्रूफन सिरप बुखार और जिस्म में दर्दों समेत दीगर अमराज के लिए मरीजों को दिया जाता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चन्योट की जमीन बीमार निकली। तजियागाह बराए मिट्टी और पानी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। 4,500 से ज्यादा मिट्टी के सैंपल्स में से 50% और पानी के सैकड़ों सैंपल्स अनफिट करार दिए गए। तजियागाह बराए मिट्टी और पानी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल में 4,500 से ज्यादा मिट्टी के सैंपल्स में से 50% अनफिट निकले, जो नामियाती मादे के लिहाज से कमजोर पाए गए, जबकि 56.6% फास्फोरस के लिहाज से कमजोर थे, जो ज्यादा मिकदार में होना चाहिए, जबकि 22.9% मिट्टी के नमूना जात में पोटाश की कमी पाई गई। पिछले साल के जो हमने सालाना जो साल ख़त्म हुआ है उसमें जो है 50.3% जो मिट्टी के सैंपल्स हैं वो नामियाती मादा ऑर्गेनिक मैटर के लिहाज से कमज़ोर पाए गए हैं। इसी तरह 46% जो है फास्फोरस के लिहाज से कमज़ोर पाए गए हैं। साबित हुआ फसलात की काश्त से कबल ज़मीन की जरखेज़ी का जांचना इस लिहाज से भी बेहतर है, ताकि मतलूबा पैदावार हासिल करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ और सही खाद का तयन बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ रिपोर्ट में पानी के भी सैकड़ों सैंपल अनफिट करार दिए गए। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मजहर इकबाल का कहना था, किसानों को फसल काश्त करने से कबल मिट्टी और पानी का तजिया करवाना चाहिए, चूँकि ज़मीन में नामियाती मादे की कमी फसलों में फी एकड़ पैदावार में कमी का बायस बनती है। फार्मर को जो किसी भी फसल काश्त करने से पहले एक बार अपने ज़मीन के मिट्टी और पानी के सैंपल्स का टेस्ट करवाना चाहिए, और हम लोग बाकायदा साइंसी तरीक़ाकार के तहत उसका एनालिसिस करके उनको रिपोर्ट शाया करते हैं। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मजहर इकबाल ने मजीद बताया, जिन ज़मीनों में नामियाती मादे की कमी है वो भैंसों, बकरियों, मुर्गियों का फुजला इस्तेमाल करें। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मजहर इकबाल ने कहा, कलर ज़दा ज़मीन में जिप्सम और नहरी पानी का इस्तेमाल करें, ताकि फसलों की फी एकड़ मतलूबा पैदावार हासिल की जाए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद का बैरून चन्योट बाजार ज़ेर तमीर पार्किंग प्लाजा का दौरा। सिटी 41 की निशानदही पर ज़ेर तामीर पार्किंग प्लाजा हर मुमकिन हद तक इस्तेमाल में लाने की हिदायत की गई। सिटी 41 ने शहरियों के मसाइल पर आवाज उठाई तो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख भी मुतहर्रिक हो गए और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान के हमरा बैरून चन्योट बाजार में 6 साल से इल्तवा का शिकार पार्किंग प्लाजे का हंगामी दौरा किया। कुछ गवर्नमेंट के इश्यूज की वजह से, कुछ सिस्टम के चेंज, कुछ फंड्स की कमी की वजह से ये प्रोजेक्ट जो है ये इल्तवा का शिकार है।
सिटी 41 ने जब मुझे कल इस प्रॉब्लम की निशानदेही की तो कल ही मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आऊँगा और तमाम जो हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज और रेलेवेंट ऑफिसर्स हैं उनको लेके आऊँगा। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के अहम मसले की जानिब तवज्जो दिलाने पर सिटी 41 का शुक्रिया अदा किया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान को 2 माह के दौरान ज़ेर तमीर प्लाजा में मामूली नोयत की तब्दीली करके मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए खोलने की हदायत कर दी। इमरान हामिद शेख कहते हैं कि ज़ेर तमीर प्लाजा इस काबिल है कि 8 बाजारों के मोटरसाइकिलें पार्क की जा सकें। फिलहाल मोटरसाइकिल्स के लिए खोल दें फेज 1 के अंदर, तो कम से कम ये हमारे बाजारों में जो बेहंगम मोटरसाइकिल्स की ये जो पार्किंग है इसका मसला हल हो जाएगा। और फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हमारी यही है कि इंशाल्लाह ताला इस प्लाजा को हम यही 5 मंजिला प्लाजा बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद का ये बाजार के इलाके की जो ट्रैफिक का या पार्किंग का मसला है इसको परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। पार्किंग प्लाजा के दौरा के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा यूसुफ, सीओ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जुबैर नथ समेत दीगर अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि 2 माह में प्लाजे को मौजूदा हालत में ही 2000 मोटरसाइकिलों की पार्किंग के लिए काबिल बना दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में जिला कौंसिल की इमारत लागिर हो गई। खतरनाक इमारत के तले काम करने वाले मुलाजमीन की जिंदगियां दांव पर लग गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में जिला कौंसिल की इमारत 37 साल पहले तामीर की गई, जो इस वक्त जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। छतें टूट फूट का शिकार है, सरिये भी बाहर निकल आए। खतरनाक इमारत के तले काम करने वाले मुलाजमीन की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। जराए का कहना है जिला कौंसिल के पास अरबों रुपए के फंड्स मौजूद हैं, लेकिन चंद लाख रुपए की लागत से इमारत की मुरम्मत नहीं हो सकी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में नर्सिंग स्टाफ भी मुश्किलात से दो चार। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल का क्याम 13 साल बाद भी न हो सका। 1 साल कबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को नर्सिंग हॉस्टल बनाने के लिए 35 लाख के फंड्स मुख्तस किए, मगर ताहाल कोई इकदाम न हो सके। जो बिल्डिंग नर्सिंग हॉस्टल के लिए मुख्तस हुई, वहाँ पुरानी मशीनरी और कबाड़ के ढेर पड़े अस्पताल इंतजामिया की राह तकने लगे। डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, कम से कम उजरत 25,000 रुपए की गई। फेस्को हेडक्वार्टर ने अहकाम जारी कर दिए। फेस्को हुकाम का कहना है डेली वेजेस मुलाजमीन को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद सहूलियात देने के लिए डेली वेजेस मुलाजमीन को अहम इकदाम करेंगे। फेस्को रीजन भर के तमाम सर्कल्स के डेली वेजेस मुलाजमीन की उजरत कम से कम 25,000 कर दी गई। डीएचके अस्पताल फैसलाबाद में 8 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली 1400 से ज्यादा सोलर प्लेट्स फाल कर दी गई। सोलर प्लेट्स की मदद से सालाना तकरीबन 3 करोड़ रुपए बिजली के बिलों की मद में बचाए जा सकेंगे। डीएचके अस्पताल में 8 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली 1400 से ज्यादा सोलर प्लेटें फाल कर दी गई। ये कोई पंजाब लेवल पे था। 3 हॉस्पिटल थे, शेखपुरा डीएचक्यू और एक और हॉस्पिटल था जहाँ पे ये इंस्टॉल होना था। ये पिछले साल अप्रैल में स्टार्ट हुआ और इसकी कंप्लीशन होनी थी दिसंबर तक। ड्यू टू वन और द अदर रीज़न वो कुछ डिले का शिकार हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब फंक्शनल हो गया। इसमें हमारी जो कास्ट है गवर्नमेंट की आई वो है 8 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, जो माहाना हमें इसकी इलेक्ट्रिसिटी की मद में जो ईयरली हमें जो बचत हो। सेंट्रल जेल फैसलाबाद में सुपरिंटेंडेंट की तैनाती म्यूजिकल चेयर बन गई। एक माह में 4 बार सुपरिंटेंडेंट जेल की तैनाती और तबादले कर दिए गए। 20 जुलाई को चौधरी असगर को तब्दील करके मंसूर अकबर को सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल तैनात किया गया। 16 अगस्त को मंसूर अकबर को तब्दील करके चौधरी असगर को दोबारा तैनात किया गया। 20 अगस्त को फिर से चौधरी असगर को तब्दील और अरशद वड़ैच को सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल लगा दिया गया। 25 अगस्त को अरशद वड़ैच भी तब्दील हो गए और मंसूर अकबर दोबारा सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल बन गए। होम डिपार्टमेंट सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल जेल की तैनाती का कोई मैकेनिज्म न बना सका। पंजाब की छोटी जेलों में सीनियर तरीन और बड़ी जेलों में जूनियर तरीन अफसरान बतौर सुपरिंटेंडेंट्स तैनात हैं।